ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, SSC CGL CHSL PCS PPSC ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS RRB ਲਈ, JEE ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਅਰ ਸਰਵਾਈਵਲਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ। ਦੇਅਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MA ਹੈਂਪੀ ਹੋਲੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? MA ਹੈਂਪੀ ਹੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹਾ ਰੋਡ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ MP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਚੌਰਾਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਨਊ ਹਰਦੋਈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੰਡਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਹਰਦੋਈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੰਡਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹਾ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਚੌਰਾਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IRCTC ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ SBI ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। SBI ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋ-ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੁਪਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰੌਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਐਸੇ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 7th ਐਸੇ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰੌਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤੀਹਾ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ 800 ਵਿਕਟਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰਚਨਾ ਸੋਰੇਂਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਚਨਾ ਸੋਰੇਂਗ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਚਨਾ ਸੋਰੇਂਗ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਫੋਰਮਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਮਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 11 ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ रवि शंकर प्रसाद द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई BIS केयर एप्लीकेशन। बेसिकली
ISI और हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चैक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई BIS केयर। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनौथ दोनों मिलकर की करनगे इनोग्रेट करनगे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नू मॉरिशस की नवी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नू दोनों मिलकर इनोग्रेट करनगे। नैक्सट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनैंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पंजवीं एनुअल मीटिंग हेल्ड क्या कह सकते हैं अटेंड की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किसदी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पंजवीं मीटिंग अटेंड की फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, जिसकी थीम रही सी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। नैक्सट है जिम लिक्विन AIIB रिलेटेड ही न्यूज़ है कि जिम लिक्विन AIIB के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सैकेंड टर्म के लिए। पहले भी AIIB के प्रेजिडेंट कौन सी जिम लिक्विन, इन्हों रीअपॉइंट किया गया। बीजिंग चाइना के हैडकुआटर है AIIB का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 2 गीगावाट्स की कैपेसिटी के नाल बनाया जाएगा आबू धाबी UAE दे विच 2 गीगावाट्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, जिसनों 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। नैक्सट है SBI ने 16.20 मिलियन का एक लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड की है मालदीव्स नूं। SBI इंडिया के SBI बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 16.20 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्रोवाइड किए ने मालदीव्स नूं। काजी ओनीक क्रिकेटर ने बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 साल के लिए डोपिंग के लिए बैन किया गया। न्यूजीलैंड की गल करिए, चौथी ऐसी कंट्री बनी है जिसने एक्सट्राडिशन ट्रीटी हांगकांग के नाल एक्सट्राडिशन ट्रीटी को खत्म कर दिता है। ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और UK तो बाद न्यूजीलैंड ने भी एक्सट्राडिशन ट्रीटी को हांगकांग के नाल खत्म कर दिता है। नैक्सट है इंडिया टू सैटअप सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका के इंडिया एक सोलर पावर प्लांट लगाएगा। बेसिकली यह इंडियाज़ NTPC और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिलकर एक जॉइंट वेंचर होएगा, जिसनों इंडियन ओशन रीजन के विच लगाया जाएगा। नैक्सट है तेलंगाना द्वारा एक नवी एप्लीकेशन हीतम नाम की एक नवी एप्लीकेशन लॉन्च की गई तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। होम आइसोलेशन, टेलीमैडिसिन एंड मोनीटरिंग। बेसिकली जेडे परसनस नूं होम क्वारंटाइन किया गया, उन्होंने डॉक्टर्स की बेसिकली प्राइवेट डॉक्टर की सर्विसिज नूं प्रोवाइड करवाने के लिए हिताम एप्लीकेशन तेलंगाना द्वारा लॉन्च की गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नूं लॉन्च किया। फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 444 करोड़ रीयूजेबल मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल कौन ने? यूपी के गवर्नर ने, प्लस इन्होंने MP का भी एडिशनल चार्ज लिता हुआ आनंदीबेन पटेल। इनोग्रेट किया इन्होंने एक एजुकेशनल चैनल स्वयं प्रभा नाम के एक एजुकेशन चैनल नूं इनोग्रेट किया यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है नाम का एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया गया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। किसके लिए? टू एनकरेज अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कित्थे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए। महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए बहुत ज़रूरी है कैंपेन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया। नैक्सट है स्टैटिक जीके के विच अज अपनी लास्ट यह सिटी डिस्कस करते हैं। पटना गंगा के किनारे है, हरिद्वार भी गंगा के किनारे है, वाराणसी भी गंगा के किनारे है, कानपुर भी गंगा के किनारे है और इलाहाबाद गंगा और यमुना के किनारे है।
अगर आप गल करिए गंगा के किनारे किहड़ी किहड़ी सिटीज़ ने तो याद रखनियां ने पटना, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों के किनारे बेसिकली जॉइंटली अगर आप गल करिए सिचुएटेड है इलाहाबाद। बेसिकली इसनूं प्रयागराज भी कहा जा रहा है, याद रखना। नैक्सट है विच डे इज़, अज की फर्स्ट न्यूज़ अपनी कि विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन परसन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन परसन किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन नूं कल के दिन अगर आप गल करिए 30 जुलाई नूं ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन परसनस कदों ऑब्जर्व किया गया? 30 जुलाई नूं। इस तो इलावा 29 जुलाई की गल करिए अगर आप इंटरनेशनल टाइगर डे हुणे डिस्कस करके हटे हाँ। 28 जुलाई नूं वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे प्लस 28 जुलाई नूं एक दिन होर ऑब्जर्व किया गया सी। 28 जुलाई नूं किहड़ा दिन ऑब्जर्व किया गया सी? एक दिन होर आप पहले डिस्कस किया सी हैपेटाइटिस, वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया गया सी 28 जुलाई। हैपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस दिन की थीम रही सी। 27 जुलाई की गल करिए 27 जुलाई नूं CRPF का रेजिंग डे, CRPF का रेजिंग डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 27 जुलाई नूं। 26 जुलाई नूं कारगिल डे, कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया 26 जुलाई। इस तो इलावा मालदीव्स का 55th इंडिपेंडेंस डे, 55th इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई नूं याद रखना है। इस तो इलावा 11th प्रेजिडेंट APJ अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की गई सी 27 जुलाई। नैक्सट है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT दे नाल, एक IIT दे नाल ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्मार्ट ग्रिड टैक्नोलॉजी दे विच ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दे लई एग्रीमेंट साइन किया PFC ने। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस IIT दे नाल किया गया? यह IIT कानपुर दे नाल, IIT कानपुर दे नाल इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा IIT दी कानपुर की गल करिए, इसने ही शुद्ध नाम का डिवाइस बनाया सी। रिसेंटली आप डिस्कस किया सी शुद्ध नाम का डिवाइस किसने बनाया सी? IIT कानपुर ने। इस तो इलावा रिसेंटली अगर IIT कानपुर की गल करिए तो मोबाइल मास्टर जी एजुकेशनल कह सकते हैं लर्निंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर द्वारा। IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी IIT गुवाहाटी द्वारा। अच्छा, IIT गुवाहाटी द्वारा ही कुछ ऐसा डेवलप किया गया सी, कुछ मैथड्स डेवलप किए गए सी। माइंड जो स्किप कर रहे, चलो तुसीं दस्सिओ कमेंट बॉक्स दे विच IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन तो इलावा की किया गया सी? IIT दिल्ली द्वारा कोपाल 19 डेवलप किया गया सी IIT दिल्ली द्वारा। IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक किसने लॉन्च किया सी? IIT गांधीनगर ने। IIT बॉम्बे ने डिजिटल स्टैथोस्कोप अईस सिंक नाम का डिजिटल स्टैथोस्कोप डेवलप किया सी IIT बॉम्बे ने। अच्छा, हुण एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कोरोस्योर नाम का डिवाइस किहड़ी IIT ने बनाया सी? इन्हां दे विचों किहड़ी IIT ने कोरोसोर नाम का डिवाइस बनाया सी? नेक्स्ट है कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU विद विच कंट्री ऑन ट्रैडिशनल सिस्टम्स ऑफ मैडिसिन के ट्रैडिशनल सिस्टम्स नूं यूज़ करने के लिए। बेसिकली कह सकते हैं ट्रैडिशनल सिस्टम मैडिसिन का किहड़ा सीगा? आयुर्वेद के लिए कह सकते हैं, या ट्रैडिशनल सिस्टम्स ऑफ मैडिसिन नूं यूज़ करने के लिए MOU साइन किया इंडिया ने किहड़ी कंट्री दे नाल? किहड़ी कंट्री दे नाल इंडिया ने साइन किया MOU? है जिम्बाब्वे दे नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। मालदीव्स की गल करिए, रिसेंटली फिश प्रोडक्शन प्लांट के लिए, हैल्थ सपोर्ट के लिए मालदीव्स के नाल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने। मालदीव्स के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया। इस तो इलावा
भूटान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹਾਈਡਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੀਟਲਸ ਕਰੰਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਰਾਰੇ, ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਲੇ, ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਥਿੰਪੂ, ਕਰੰਸੀ ਨਗੋਲਤਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ, ਕਰੰਸੀ ਰੁਪੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਬੁਲ, ਕਰੰਸੀ ਅਫਗਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहनगियाँ, कैपिटल्स और करंसीज याद रखनियाँ ने। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, केड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने USD 3 मिलियन ग्रांट प्रोवाइड की है इंडिया नू कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। एक हुंदा लोन प्रोवाइड करना और एक हुंदा ग्रांट प्रोवाइड करना। लोन आपां नू वापस करना पैंदा पर ग्रांट वापस नहीं करनी पैंदी। याद रखना 3 मिलियन ग्रांट यानी कि बेसिकली अमाउंट की गल करिए तो समथिंग 22 करोड़ रुपए बने। 22 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए ने किहड़े बैंक ने इंडिया नू प्रोवाइड किए ने? ये प्रोवाइड किए ने ADB ने। अच्छा, ADB की गल कर लें, इत्थे डिस्कस कर लें। सब तो पहले ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक बीजिंग चाइना दे विच हैडकुआटर है। मसत्सुगु आसाकावा ADB दे प्रेजिडेंट ने। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। और चौथी गल इत्थे दे वाइस प्रेजिडेंट रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अशोक लवासा। इंडियन ने वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, बेसिकली इलैक्शन कमिश्नर से इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट अशोक लवासा, ADB दे वाइस प्रेजिडेंट। याद रखना। वर्ल्ड बैंक की गल करिए 189 मैंबर कंट्रीज़, वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर और डेविड मलपास इस दे हैड ने। IMF सिमिलर 189 मैंबर कंट्रीज़, वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर है और इस दे हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, IMF के बारे एक न्यूज़ भी है, वो आप अगे डिस्कस कर लेंगे। AIIB बीजिंग चाइना दे विच हैडकुआटर। इस दे विच अगर मैंबर कंट्रीज़ की गल करिए तो 103 ने। 103 मैंबर कंट्रीज़ ने। लास्ट मैंबर कंट्री अगर गल करिए लिबेरिया है। और AIIB का हैड ने मसत्सुगु आसाकावा, नहीं सॉरी, AIIB के हैड आप हुणे डिस्कस किए हैं जिम लिक्विन। मसत्सुगु आसाकावा ADB दे ने। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं, शंघाई चाइना दे विच हैडकुआटर है और इसके हैड ने मार्कोस त्रियोजो, रिसेंटली अपॉइंटेड ने मार्कोस त्रियोजो। कित्थों बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड पदी भवा जलालू तेलुगु एडिशन है एक बुक का। बेसिकली बुक का नाम सीगा 10 आइडियोलॉजीज। इंग्लिश एडिशन की गल करिए 10 आइडियोलॉजीज इसका तेलुगु एडिशन रिलीज़ किया गया पदी भवा जलालू। इसनों किसने रिलीज़ किया? सैकेंड ऑप्शन M वेंकैया नायडू, इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट द्वारा पदी भवा जलालू एक बुक है जी जिसकी 10 आइडियोलॉजीज इसका तेलुगु एडिशन इस नाम तो रिलीज़ किया गया। बेसिकली अगर 10 आइडियोलॉजी बुक की गल करिए इसके राइटर कौन ने? जयपाल रेड्डी इस बुक के राइटर ने। इसनों तमिल दे विच ट्रांसलेट किया गया और रिलीज़ किया गया M वेंकैया नायडू द्वारा। स्मृति ईरानी द्वारा क्रोंकाइल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नाम की बुक किसने रिलीज़ की थी? स्मृति ईरानी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरस्टिंग बुक्स ने जिहड़ी रिलीज़ की गई सी। अगर आप गल करिए माइंड चो स्किप कर रहे हैं, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स गियाँ। एक बुक सी जिसके राइटर से एन चंद्रशेखरन राइटर से। उस बुक को रिलीज़ किया नरेंद्र मोदी ने। मेरे माइंड से स्किप कर रही है बुक का नाम।
अच्छा एस हुसैन जैदी द्वारा रिसेंटली बुक रिलीज़ की गई है एंड गेम नाम की बुक एस हुसैन जाहिदी द्वारा रिलीज़ की गई है। ठीक है जी, ये याद रखनी है। नैक्सट है, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर होर देना, नरेंद्र मोदी जी के 1 साल की सैकेंड टर्म के 1 साल पूरे होने ते एक बुक रिलीज़ की गई थी, उस बुक का नाम दसना। नैक्सट है, हू हैज़ फ्लैग्ड ओ फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पवन हैंस इन उत्तराखंड अंडर द उड़ान RCS स्कीम टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन देहरादून, न्यू टेहरी, श्रीनगर और गौचार। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सब तो पहले उड़ान की गल करते हैं। उड़ान की है? उड़ान एक स्कीम है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। RCS की फुल फॉर्म है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। बेसिकली कि जिहड़ी नॉर्मल मिडल क्लास लोग ने, यानी कि आपां लोग जिहड़े मिडल क्लास लोग ने, ओह एक फ्लाइट का सफ़र अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने अफोर्डेबल बनाने के लिए, फ्लाइट के सफ़र को अफोर्डेबल बनाने के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई सी। हुण उसके अंडर एक हैलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है उत्तराखंड दे विच, बेसिकली जिहड़ी कनैक्ट करदी देहरादून, न्यू टेहरी, श्रीनगर और गौचार नूं। किस द्वारा लॉन्च किया गया? सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हां लवे यूपी तो राज्य सभा मैंबर ने यूपी तो। प्रहलाद सिंह पटेल की अगर आप गल करिए तो प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर और टूरिज़म मिनिस्टर ने। कल्चर और टूरिज़म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। राजकुमार सिंह पावर मिनिस्ट्री, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। पावर, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने। शिपिंग मिनिस्टर कौन ने? मनसुख लाल मंडाविया। और राज्यसभा MP ने गुजरात तो। जितेंद्र सिंह लवे केड़ी मिनिस्ट्री है? डोनर मिनिस्ट्री है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर दे उधमपुर तो, जम्मू एंड कश्मीर दे उधमपुर तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री ने अपना नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर ले। सुनो याद होएगा, आप काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जी HRD मिनिस्ट्री है उसका मतलब है एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम HRD मिनिस्ट्री रखा गया सी, हुण इसनूं वापस एजुकेशनल मिनिस्ट्री का नाम दिता गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुण आपां की क्या करांगे? एजुकेशन मिनिस्टर क्या करांगे। यानी कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन ने? क्वेश्चन है अपना, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन ने? रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने। बेसिकली अगर आप गल करिए, यह हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने, और यह अर्जुन मुंडा खूंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने, बेसिकली MP तो मध्य प्रदेश तो राज्यसभा MP ने। हरसिमरत कौर बादल लवे फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री है, बठिंडा पंजाब तो लोक सभा MP ने। रामविलास पासवान कल भी आप डिस्कस किया, हुण भी आप डिस्कस करके हटे हैं। इन्हां लवे मिनिस्ट्री है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यसभा MP ने बिहार तो। प्लस इन्हां लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है। अच्छा HRD मिनिस्ट्री के रिलेटेड या कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपनी पॉलिसी भी चेंज की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ने पॉलिसी के रिलेटेड, तुसीं चाहो तो उसको गूगल करके स्टडी कर सकते हो। हालांकि अपने एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं बनते हैं, पर अगर थोड़े ब्रदर सिस्टर वगैरह कुछ छोटी क्लासिस पढ़ते हैं तो उन्होंने पूरी दी पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिता है। फॉर एग्जाम्पल जोड़े सबजैक्ट्स आप 11th 12th चुनते होंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉन मैडिकल हो गया, आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी,
ये चीज़ों को 9th तो शुरू कर दिता जाएगा और इस प्रॉपरली इस तरीके नहीं होएगा कि नॉन मैडिकल लैनी है 9th तो नहीं, इस बच्चा अपनी मर्जी के सबजैक्ट्स चूज़ कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसनों मैथ्स पसंद है इस दे नाल वो जियोग्राफी भी लै सकता है, इस दे नाल अगर उसनों साइंस भी पसंद है, साइंस के पार्ट्स होंगे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, तो फिजिक्स जियोग्राफी और मैथ्स का भी कॉम्बीनेशन बना सकता है। ठीक है, काफ़ी इंटरस्टिंग है, पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया है। काफ़ी इंटरस्टिंग फैक्ट्स ने, अगर तुम चाहो तो गूगल करके स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की गल करिए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने, प्लस इन्होंने लवे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है और साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिता गया अशोक सानी नूं। अशोक सानी नूं लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस की गल करिए सारिਆਂ ਨੂੰ कोई ना कोई अवार्ड दिता गया। डॉक्टर S सुरेश बाबू सारिਆਂ ਨੂੰ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री द्वारा बेसिकली डॉक्टर S सुरेश बाबू ਨੂੰ नैशनल अवार्ड किस दे लई दिता गया है? एटमोसफेरिक साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए। एटमोसफेरिक साइंस एंड टैक्नोलॉजी। NV चलापति राव ਨੂੰ नैशनल अवार्ड दिता गया है जियो साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए। जियो साइंस एंड टैक्नोलॉजी के लिए। MA आत्मानंद ਨੂੰ नैशनल अवार्ड दिता गया है ओशियन टैक्नोलॉजी के लिए। ओशियन टैक्नोलॉजी के लिए। डॉक्टर इंदिरा शेखर जी शेन ਨੂੰ यंग रिसर्चर अवार्ड दिता गया। यंग रिसर्चर अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, ये सारे अवार्ड अर्थ साइंस मिनिस्ट्री द्वारा 5 पर्सनस को दिते गए ने, याद रखने ने। नेक्स्ट है एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एस्पीरेशनल नीति इंडेक्स है जिहड़ा वो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? नीति आयोग द्वारा। बेसिकली इसका मतलब की है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिहड़े कि पिछड़े हुए ने, यानी कि डेवलपमेंट दे विच काफ़ी ज़्यादा पिछे ने, उन्हां दे लई नीति आयोग द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिस दे अंडर उन्होंने कहा कि उन्होंने डेवलप किया जाएगा। उस दे विच 6 फैक्टर्स चूज़ किए गए ने। हैल्थ हो गया, टैक्नोलॉजी होगी और भी काफ़ी एजुकेशन होगी, ऐसे फैक्टर्स ने जिहड़े यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इन्हां दे रिलेटेड हुण जिहड़ी डेवलपमेंट की गई तो फरवरी तो जून के पीरीयड के लिए इस इंडैक्स को रिलीज़ किया गया। किहड़े डिस्ट्रिक्ट ने इसनूं टॉप किया? अगर आप गल करिए क्वेश्चन होर पूछा जा सकता है टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने ने? इस दे विच 112 डिस्ट्रिक्ट का यह इंडैक्स रिलीज़ किया गया है और फर्स्ट प्लेस पर रहा बीजापुर छत्तीसगढ़। बीजापुर छत्तीसगढ़ इस इंडैक्स दे विच टॉप पर रहा, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर है बीजापुर छत्तीसगढ़। सैकेंड प्लेस पर रिभोई मेघालय, थर्ड प्लेस पर बहरीच UP, फोर्थ प्लेस पर नवाडा बिहार और फिफ्थ प्लेस पर मोगा पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है मोगा। यह इस इंडैक्स के 5वें प्लेस पर है। आप पंजाब के रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस आपको इंपोर्टेंट ये भी होएगा कि पंजाब के जोड़ा मोगा विलेज है वो किहड़े नंबर पर रहा है इस इंडैक्स के 5वें नंबर पर रहा, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया किहड़ी स्टेट दे विच? फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन फार्म सैक्टर। बेसिकली अगर आप गल करिए एग्रीकल्चर नूं ट्रांसफॉर्म करने दे लई ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसका फर्स्ट फेज़ हजे लिए लॉन्च किया गया मिजोरम दे विच। थर्ड ऑप्शन मिजोरम दे विच ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नूं लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखना है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कित्थे लॉन्च किया गया? मिजोरम दे विच। इस तो इलावा 4 जिहड़े होर ऑप्शनस ने इन्हों भी अनाउंस किया गया कि इन्हों दे विच भी जल्दी ही ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, यानी कि MP, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। MP, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड दे विच भी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नूं लॉन्च किया जाएगा। इस तो इलावा MP की कुछ स्कीम्स अगर डिस्कस करिए तो दीदी व्हीकल सर्विस होगी, किल कोरोना कैंपेन हो गया,
काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट स्कीम सीगियां जिहड़ी कि MP स्टेट गौरमेंट द्वारा लॉन्च कीतियां गईयां सी। उन्हां दे विचों कुछ अगर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दस सको तो काफ़ी अच्छा होएगा। फॉर एग्जांपल जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ठीक है, ये याद रखनियां ने। नैक्सट है अगर एक राजस्थान के जयपुर नूं नो कंस्ट्रक्शन जोन डिकलेयर किया गया सी। उत्तराखंड की गल करिए स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन प्रोजैक्ट ये गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच लगाया गया सी। मिजोरम की स्कीम्स कालिया पीठा अम्मा घरे, मिजोरम नहीं सॉरी उड़ीसा, कालिया पीठा अम्मा घरे, सुनेत्र स्कीम, समृद्धि स्कीम, मोह सरकार, मोह परिवार, मोह कल्याण स्कीम्स लॉन्च की गई सी उड़ीसा दे विच। नैक्सट है विच स्टेट गौरमेंट हैज़ साइंड MOU टू स्ट्रेंथन द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। सब तो पहले कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की गल करिए, रिसेंटली आप डिस्कस किया UK इंडिया बिजनेस काउंसिल बारे। लंडन UK दे विच इसका हैडकुआटर है और इसके जोड़े CEO ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं जयंत कृष्णा UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नवे CEO अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है जी। तो केड़ी स्टेट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? गुजरात ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नाल। इस तो इलावा गुजरात के रिगार्डिंग वहीली डिग्री योजना याद रखनी है, गुजरात स्टेट गौरमेंट की है। गुजरात का गांधीनगर फर्स्ट कैरोसीन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया सी। अहमदाबाद के इंटरनेशनल काइट फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। गुजरात के ही COP13 कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई सी। अहमदाबाद के वर्ल्ड द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनोग्रेट किया गया सी। याद रखने सारे फैक्ट्स। अच्छा, गुजरात ही टेजर गन्स नूं यूज़ करने वाला कोविड-19 के लिए टेजर गन्स नूं यूज़ करने वाली फर्स्ट स्टेट गुजरात बनी सी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना नूं लॉन्च किया गया सी हरियाणा द्वारा अटल मजदूर कैंटीन्स नूं भी लॉन्च किया गया सी। 75% जॉब्स नूं कह सकते हैं कि रिजर्वड कर दिता सी लोकल्स के लिए हरियाणा गौरमेंट द्वारा 75% प्राइवेट जॉब्स नूं। कोवा पंजाब एप्लीकेशन पंजाब दे विच लॉन्च की गई सी। पंजाब दे विच एक होर एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी, बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है। कमेंट बॉक्स में दसनी है पंजाब दे विच केड़ी एप्लीकेशन बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र की गल करिए महा जॉब्स पोर्टल, महापरवान पोर्टल ये लॉन्च किए गए हैं महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। मी अन्नपूर्णा स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई सी महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। शिव भोजन स्कीम भी लॉन्च की गई सी महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। यूपी हर्बल रोड्स यूपी द्वारा 800 किलोमीटर की लॉन्च की गई सी। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी यूपी द्वारा। इस तो इलावा यूपी की गल करिए, इस तो इलावा यूपी ने की किया सी, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इन्हों बारे एक न्यूज़ आप कल डिस्कस की है, प्लस इन्हों MP के गवर्नर भी बनाया गया, याद रखना। नैक्सट है विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है जिसने बंदीकूट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट्स को यूज़ करना शुरू किया। पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट केड़ी बनी है जिसने बंदीकूट जोड़े मैनहोल्स होंगे ने बेसिकली जोड़े गटर वगैरह कहते हैं जिन्हें आपू उन्होंने क्लीन करने लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू करेगी पहली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। केड़ी बनी है? असम, यानी कि असम के गुवाहाटी के बेसिकली असम के गुवाहाटी ने शुरू किए हैं ये बंदीकूट रोबोट्स को यूज़ करना। सिमिलर तरीके के रोबोट्स इंडिया के अगर आप गल करिए सब तो पहले गुरुग्राम ने शुरू किए थे। गुरुग्राम हरियाणा के उस तो गुवाहाटी अगर आप गल करिए थर्ड ऐसी स्टेट बनी है जिसने इसनों यूज़, थर्ड ऐसी सिटी बनी है। सब तो पहले गुरुग्राम के उस तो बाद कोयम्बतूर के भी इन्हों यूज़ किया जा चुका है। पहली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट और थर्ड सिटी बनी है गुवाहाटी, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा असम एक काफ़ी चीज़ा करके न्यूज़ भी चल रहा सी। फॉर एग्जाम्पल देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੋਬਾ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪੋਬਾ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3rd ਗੇਮਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੈਰੀ ਬਲੂਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਚੈਰੀ ਬਲੂਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪਚਾਰ ਕੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉਖਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੈਸਟਡ ਇਟਸ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਜ਼ਰਕੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਜ਼ਰਕੋਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ S-400 ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। S-400 ਮਿਸਾਈਲਸ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਮਿਸਾਈਲਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2 ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਜੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ S-400 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਕਟਿਕਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ LMG ਗਨਜ਼ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਰਫਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ IMF ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ। IMF ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, 4.3 ਬਿਲੀਅਨ US$ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ IMF ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।